Hello students, today we are going to study an organ system, that is the digestive system. Okay, so the organs that concern with the digestion of food is form a system, that is the digestive system. We can study this system with the help of two main heading: alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal contain all the organs that are a help in the digestion. Okay, like the mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, and anus. Okay, like that. And the digestive gland, these are the associated glands with the alimentary canal. They secrete out their secretion into the digestive tract, like enzymes and bicarbonate. With the help of this enzyme and bicarbonate, the large complex substance get digested into the simple substance, get converted into the simple substance. Okay, these are the two main headings: alimentary canal and digestive gland. So very first we study about the alimentary canal and all the parts of the alimentary canal. That is the first, mouth. You can here able to see that is the mouth. Okay, in mouth there is a three main organ that help in the digestion: teeth, tongue, and salivary gland. Okay, with the help of teeth our food can divided into the small pieces. Our teeth is doing the work of grinding. It's grinding our food. Big particles are grind with the help of teeth into the small particles. The next is the tongue. Tongue is a muscular organ of buccal cavity. It contains the numerous taste buds on its surface. These taste buds are sensitive for four tastes: sweet, salt, sour, and bitter. Okay, with the help of these taste buds we can feel the different types of taste. And also tongue help in the chewing. It continuously sanding food between the teeth. Tongue is also help in the cleaning of our teeth. It's work like a brush, and also it help in the speech. Now the third important organ of our buccal cavity, that is the salivary gland. There are three pairs of salivary gland: parotid, sublingual, and submaxillary. Parotid is in front of ear. In front of ear, it is a parotid. Okay, parotid in front of ear. It's situated here only. Okay, and second is a sublingual. It's present below the tongue. And third is a submaxillary. It present between the lower jaw. It present inside the lower jaw, and its secretion is coming into the lower part of tongue, the base of the tongue. Okay, so these are the three main salivary glands. First is the parotid, second is the sublingual, and third is the submaxillary. Parotid is the largest salivary gland. Okay, so it contains the saliva. Saliva, mainly three things are there in the saliva. First is the mucus, second water, and third enzyme. Okay, so saliva contain one enzyme, that is the amylase. Okay, आपने सुना होगा कि घर में बोलते हैं कि आप खाने को बहुत चबा चबा के खाओ, ताकि आपका जो स्लाइवा है वो फूड में प्रॉपरली मिक्स हो जाए. खूब अच्छे से चबा के खाने से क्या होगा, फूड मुंह में थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा, जिसकी वजह से स्लाइवा फूड में अच्छे से मिक्स हो पाएगा. और जब फूड में स्लाइवा मिक्स होगा तो जो एंजाइम है, जो स्लाइवा में प्रेजेंट जो एंजाइम है अमाइलेज का टारगेट जो सब्सटेंस है जिसको वो डाइजेस्ट करेगा, डेट इज द स्टार्च. ठीक है, तो जब अमाइलेज फूड स्टार्च को डाइजेस्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी आपका स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम स्टार्च कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज. एंड अब बोलते हैं ना, बहुत देर तक अगर मुंह में खाना रखते हैं तो खाना आप चाहे जैसा भी खाना खाओ, लेकिन अगर आपने उसको बहुत देर तक चबाया है तो वो ऑटोमेटिक मीठा लगने लगेगा, क्योंकि जो भी आपके फूड में स्टार्च था वो पहले तो कन्वर्ट हुआ है माल्टोज में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में या ग्लूकोज में, तो उसका टेस्ट आपको ऑटोमेटिकली मीठा हो जाएगा. तो आप जो भी खाते हैं उसको बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए. ठीक है, ताकि आपके फूड प्रॉपरली स्लाइवा प्रॉपरली वर्क कर पाए आपके स्टार्च के ऊपर. ठीक है, क्योंकि बॉडी में और कहीं स्लाइवा नहीं है, स्लाइवा केवल मुंह में ही है, तो इट्स हेल्प इन स्लाइवा का पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए. देन फूड गोज इनटू द स्टमक. आप देख रहे हैं यहाँ पे एसोफेगस से यहाँ पे फूड था, फूड यहाँ से चला है और सीधा कहाँ आ जाएगा, स्टमक में, विद द हेल्प ऑफ दैट फूड पाइप. द लेंथ ऑफ फूड पाइप इज 25 centimeter. Okay, and it is a long, narrow, and straight tube.
Okay, esophagus is long, narrow and straight tube. It open into the stomach. देयर इज अ नो डाइजेस्टिव ग्लैंड. इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसलिए इसोफेगस में किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होगा. ये सिर्फ एक हेल्प करती है माउथ से फूड को कहाँ पे सेंड करने के लिए, स्टमक में सेंड करती है. ठीक है, यहाँ इसकी मसल्स में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी हेल्प से जो फूड है वो आगे बढ़ता जाता है. ठीक है, मसल्स की मूवमेंट की हेल्प से. तो यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं है, बट यहाँ मसल मूवमेंट बहुत एक्टिवली मसल मूवमेंट होता है जिसकी हेल्प से फूड माउथ से सीधा कहाँ चला जाता है, स्टमक में. ओके, सो स्टमक, ये दिस इज द स्टमक. ये हमारा जो आपका लॉन्ग जे शेप स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जे शेप स्ट्रक्चर है. एंड इट्स सेक लाइक, एक बैग जैसा है, एक थैले जैसा है. एंड यहाँ पे दो स्फिंक्टर है. ठीक है, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन. द अपर रीजन इज कॉल्ड, दिस अपर रीजन इज कॉल्ड द कार्डियक रीजन, and the middle region is called fundus. Middle portion is called the fundus, and the third portion it is a pyloric stomach. Okay, so stomach is clearly divided into 3 regions. Upper region is called cardiac stomach, middle is called fundus, and the lower parts of stomach is called the pyloric stomach. जहाँ पे सिर्फ फूड पाइप और स्टमक का जो जंक्शन है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर है. ठीक है, जिसको ये जो है यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. ठीक है, ये क्या है आपका कार्डियक स्फिंक्टर. ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये हेल्प करता है आपका जो खाना आ रहा है स्टमक में, जब पूरी तरह से खाना हम खा चुके होते हैं तो स्फिंक्टर जो है वो बंद हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पर है जहाँ पे आपका पाइलोरिक स्टमक है, उसी के एंड पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है. ठीक है, जहाँ स्टमक है, स्टमक के ऊपर जहाँ एक कार्डियक स्फिंक्टर है और नीचे लास्ट पोर्शन ऑफ स्टमक देयर इज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, जब तक कि स्टमक में डाइजेशन चल रहा होता है तब तक दोनों स्फिंक्टर क्लोज रहते हैं ताकि बहुत अच्छे से खाना स्टमक में डाइजेस्ट हो जाए. जो स्टमक है उसकी वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना. स्टमक में कौन सी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड. इट इज अ सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ना. पहले एक हमने साइवरी ग्लैंड पढ़ी है, यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसकी हेल्प से डाइजेशन होता है. ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो इसकी इनर वॉल है, वहां पे 3 तरह की सेल्स हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह की कॉमन टाइप की 3 ग्लैंड सेल्स हैं. फर्स्ट पेप्टिक सेल्स, पैराइटल सेल्स और म्यूकस सेल्स. तो पेप्टिक सेल्स जो है उससे सिक्रीशन होता है पेप्सिनोजन एंजाइम का. ठीक है, कुछ लाइपेज एंजाइम भी होते हैं सिक्रीशन वहां से. और जो म्यूकस सेल्स है वो कंटिन्यूअसली सिक्रेट करती है म्यूकस को. और जो थर्ड सेल है दैट इज द पैराइटल सेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एसिड सेल बिकॉज इट सिक्रेट्स HCl. ठीक है, यहाँ से एक HCl का सिक्रेशन होता है. तो यहाँ पे मेनली स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहां से 3 मेन चीजें हैं, एंजाइम्स. ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम और पैराकेसिन and that enzymes is there. Okay, and the second is the mucus gland secrete mucus, and third acid cell is secrete the HCl. Okay, this HCl is very important for the digestion because जो प्रोटीन का जो डाइजेशन है उसके लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है. ठीक है, तो एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पे आप HCl क्रिएट करता है एसिड मीडियम. तो फूड का डाइजेशन जो आप पेप्सिनोजन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. जैसे ही फूड स्टमक में आता है तो HCl सीक्रेट होता है और ये HCl जो पेप्सिनोजन एंजाइम है उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है. ठीक है, तो पेप्सिनोजन एंजाइम का एक्टिव फॉर्म है पेप्टिक है ना, पेप्टिक में चेंज होता है. पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तब ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को. ठीक है, समझ रहे हैं आप. जो हमारा पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. जैसे ही HCl सीक्रेट होता है, HCl के कांटेक्ट में पेप्सिनोजन आएगा, ये एक्टिव फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिन. ठीक है, और ये पेप्सिन जब एक बार एक्टिव हो जाएगा तो ये फूड में जितना भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. और जो म्यूकस है ना, म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस सिक्रेट कर रही है वो पूरे इनर लेयर पे एक तरह से स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही है. क्योंकि HCl जो है, जो कंटिन्यूअसली HCl सिक्रेट हो रहा है वो आप स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, गेट हार्म. तो म्यूकस ग्लैंड जो है वो इसके नुकसान से होने वाले हार्म से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है.
ठीक है। 3 या 4 घंटे यहाँ पर चर्निंग की प्रोसेस चलती है, ठीक है। स्टमक यहाँ पे जो फूड है वो पूरी तरह से क्या होता रहता है, डाइजेस्ट होता है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस पेस्ट का नेचर कैसा है, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे एसिड है। उसके बाद आफ्टर 3 और 4 आवर्स इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ जा रहा है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए स्फिंक्टर, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो खुलेगा, ठीक है। जब तक ये बंद रहेगा तब तक की फूड का डाइजेशन चल रहा है स्टमक में। जैसे ही फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 3 और 4 आवर्स, जो स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल है ये ओपन होगा और जो पेस्ट है आपका सेमी सॉलिड पेस्ट है वो कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 डिफरेंट पार्ट हैं, देखिए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हाँ, ड्यूडेनम जो है ये सी शेप वाला पोर्शन, ये सी शेप आपको दिख रहा है स्टमक के जस्ट बाद, ये सी शेप का पोर्शन है, दैट इज द ड्यूडेनम, ओके। देन आगे थोड़ा सा जेजुनम और लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो इलियम, ठीक है। तो जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है यहाँ पे 2 और डाइजेस्टिव ग्लैंड की सिक्रीट होते हैं इस पोर्शन में। ड्यूडेनम वाले पोर्शन में ही लीवर से आने वाला बाइल जूस और पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है, दे गोज इनटू द दिस ड्यूडेनम पार्ट, ओके। सो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत क्लियर, मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, जो भी ग्लैंड्स है वो सारी ब्लू से बनाई है। तो ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लीवर, और लीवर के जस्ट पास में है गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद में ये है पेनक्रियास, ठीक है। लीवर से निकलने वाली बाइल डक्ट, ठीक है, जो बाइल जूस को लेकर आ रही है वो पहले पेनक्रिएटिक डक्ट से कांटेक्ट में आएगी, मतलब 2 लीवर का सिक्रीशन और पेनक्रियास का सिक्रीशन 2 अलग अलग ओपनिंग के थ्रू स्टमक ड्यूडेनम में नहीं जाता है, ठीक है। पहले लीवर से आने वाली बाइल डक्ट जो है वो कनेक्ट होगी पेनक्रिएटिक डक्ट से, फिर दोनों मिलकर एक ही ओपनिंग के थ्रू किसमें जाएंगे, ड्यूडेनम में, ठीक है। तो जो बाइल डक्ट है वो लीवर से बाइल जूस को लेकर आएगी और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को लेकर आएंगी और ड्यूडेनम में जाएंगी, ठीक है। तो ड्यूडेनम में हमको 2 ग्लैंड्स का क्या मिल रहा है, सिक्रीशन मिल रहा है, एक तो लीवर का और एक पेनक्रियास का, ठीक है। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर डाइजेशन किसके हेल्प से हो रहा है, लीवर से आने वाले बाइल जूस की हेल्प से और पेनक्रियास से आने वाले पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। इसके अलावा लीवर की इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर वॉल में इंटेस्टिनल ग्लैंड है, वो भी कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करती हैं, कुछ म्यूकस सिक्रेट करती हैं जो हेल्प करता है डाइजेशन में। Liver is the largest gland of human beings, okay, and it is a triangular in structure. It having 2 lobes, right lobe and left lobe. This is the right lobe and this is the left lobe. On the surface of right lobe there is a sac-like structure that is called the gallbladder. Okay, generally a liver produce bile juice and this juice is stored in the gallbladder. Bile juice generally yellowish alkaline watery fluid, okay. It contain water, mucin, cholesterol and some bicarbonates. These bicarbonates are very important in the digestion of food. And now the pancreas, it is the second largest gland of our body, okay. It is a leaf-like structure. It is having a 3 portion, tail, body and head, okay, 3 different distinct portion. And pancreas is also called the mixed gland because it is exocrine in nature as well as endocrine in nature. That means it secretes hormones also as well as it secretes enzymes also, ठीक है। पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है और कुछ सेल्स इसकी ऐसी हैं जो एंजाइम्स सिक्रेट कर रही हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्वीट ग्लैंड, इसको मीठी ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो डायबिटीज डिसीज होगी। अगर ये प्रॉपरली फंक्शन, पैनक्रियाज अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, अगर इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं कर रहा है तो इंसुलिन की वजह से जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज, ओके। सो इसलिए इसको स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे आपका फूड का डाइजेशन हो रहा है लीवर से आने वाले बाइल जूस की हेल्प से, पेनक्रियास से आने वाले पेनक्रिएटिक जूस की हेल्प से और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स की हेल्प से। पेनक्रियास से जो जूस है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं, जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज, जो प्रोटीन, लिपिड और फैट का डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं,
ठीक है, फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिनको हम बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, ये माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड जो हो रहा है वो माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके बाद फूड आपका जा रहा है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के क्लियरली 3 रीजन है। ये वाला जो ब्लाइंड रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस ब्लाइंड रीजन इज कॉल्ड सीकम। ठीक है, सीकम। उसके बाद है कॉलन। कॉलन, ये असेंडिंग कॉलन, ये वाला पोर्शन आपका असेंडिंग कॉलन। फिर ये जो पोर्शन जा रहा है वो ट्रांसफर कॉलन, ये ट्रांसफर कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, और लास्ट वाला पोर्शन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम। ठीक है, जहां पे आपका अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो रहा है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह की कोई माइक्रोविलाई नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई आपका फूड एब्जॉर्प्शन माइक्रोविलाई के थ्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो फूड का डाइजेस्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है, फूड में बहुत ज्यादा वाटर है जो एब्जॉर्ब, फूड का जो वाटर जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इसकी वॉल्स, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल। यहाँ पे जो कॉलन वाला रीजन है, यहाँ पे कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई वगैरह बैक्टीरिया है जो हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन को डिकम्पोज कर देते हैं या अमीनो एसिड में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन आवर कोलन रीजन, दे सिंथेसाइज विटामिन लाइक विटामिन B1, B2 एंड विटामिन के। ठीक है, तो ये स्टोरेज, यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है विटामिन का, और स्टोरेज एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद जो एनस, लास्ट में आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये स्टोर हो गया है कहाँ पर? रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम में स्टोर होने के बाद ही एनस से पास आउट कर दिया जाता है। इजेक्शन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट होता है बॉडी से। ठीक है, तो ये आपके डाइजेशन की पूरी प्रोसेस थी जिसको हमने आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दूसरा जो आपका ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे।